بس کربلا سے پہلے تک اور ریلیجن تھا, کربلا کے بعد اچانک سے دین کے ماننے والے یتیم ہو گئے. واقعہ ہررا, خانہ کعبہ میں آگ لگی ہے, گھوڑے گدھے وہاں پہ باندھے گئے ہیں, رات 3 دن وہاں پہ گھوڑے گدھے جو ہیں وہ لیٹر کرتے رہے ہیں خانہ کعبہ میں. کیوں نہیں بتائی جاتی بات؟ آگ لگائی ہے اس نے خانہ کعبہ. صحیح بات ہے. واقعہ ہررا از دا موسٹ ڈارکسٹ پیریڈ آف اسلامک ہسٹری. وہ مولا علی کا قول ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, یعنی مائی سائڈ آف دا ڈائلاگ, مائی مونولوگ. اور جب میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. قرآن اتنا زندہ کلام ہے کہ وہ مجھے میرے شعور کے مطابق گفتگو کرتا ہے مجھ سے. یہ بات سمجھے گا میں آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں اس بات سے. صوفی لوگوں نے بر صغیر کو منور کیا دین سے, ورنہ محمد بن قاسم تو اہل بیت کی فیملی کو قتل کرنے آیا تھا, جس کو بڑا انہوں نے چڑھا دیا, ہیرو بنا دیا. He was here to murder the daughters, the family members of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ ریلیجن تصوف ہی لے کے آ سکتا تھا, کیونکہ اس خطے میں آلریڈی تصوف اپنی ایکسٹریم کو ٹچ کر چکا تھا. تھاٹ, تصوف کیا ہوتا ہے؟ تصوف ان سمپل ورڈز ایکسس آف دا ڈیوائن نالج ہوتا ہے. یہ جوہلا کا رجحان ہوتا ہے کہ اپنے اکابر کی وہ چیزیں عیاں کرنا جن کو انہوں نے اپنے وائزسٹ مومنٹ میں کسی سٹیج پہ لاک کر دیا ہو. اس کو سمجھیے گا میری بات. ہاں, دوسرا سوال میرا یہ تھا سر کہ آپ نے جس طرح سے بولا کہ ایک تو کتاب میں ایک جامع علم آ گیا, اور اس کے اندر آپ کا مقصد ان چیزوں کا تھا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اوپن چھوڑ دیا ہے سوچنے کے لیے, جس کو ایمبیگوس چھوڑ دیا ہے, یہ اس کے اوپر یہ چیز بلڈ اپ ہوتی ہے. آپ کا مقصد اس سے تھا, یا اللہ تعالیٰ کے ظاہر کے جو پکی باتیں بتائی ہوئی ہیں اس کے اوپر تو آپ کچھ نہیں ایکسٹرا بلڈ کر سکتے نا؟ یہ اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں قرآن پاک میں نا 2 ایسے بیسک علوم ہیں آؤٹ آف دا مینی, اکارڈنگ ٹو علامہ سیوطی, اراؤنڈ 100 علوم آف قرآنک لینگویج. دا ہول قرآن کانٹیکسٹ میں انہوں نے 100 کے قریب علوم آئیڈینٹیفائی کی ہیں. علامہ سیوطی نے, ان کی کتاب ہے الاتقان, پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, اس میں انہوں نے وہ اوور 80 علوم سٹیپ بائی سٹیپ بتائے ہیں. اسی طرح شاہ ولی اللہ نے قرآن پاک کو 5 بیسک کلاسیفیکیشنز میں ڈالا ہے. اس میں سے 2 کلاسیفیکیشنز ابھی ہمارے زیر بحث ہیں جو آپ گفتگو کر رہے ہیں, جو آپ کا سوال ہے. ایک ہے محکمات, جس میں تمام احکامات صادر کیے گئے ہیں, کمانڈمنٹس, اس میں گنجائش نہیں ہے چھوٹ کی یا تعویل کی یا توجیہ کی, کوئی گنجائش نہیں, وہ ڈائریکٹ ایز از ماننے ہیں, اس لیے ان کو کمانڈمنٹس کہہ دیا گیا. صحیح. وہ ان محکمات میں بحث نہیں ہے, گنجائش ہی نہیں ہے, جو بحث کرتے رہے ہیں اوور دا ایئرز ان سینچری ان آور ہسٹری, سینچریز اگو, جو جہاں بحث ہوئی ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. سر تسلیم خم کرنا پڑا ہے محکمات پہ انسان کو. یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے. یہاں پہ ریلیجن کے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ ویری بلیک اینڈ وائٹ پائے جاتے ہیں, بہت حد تک. گرے اس میں اگر ہے بھی تو صرف اور صرف اس کی امپلیمنٹیشن کے پروسیس کے کچھ تھوڑی سی ڈفرنس کا ہے, لیکن بائی لا وہ لا ایگزسٹ کرتے ہیں, سب اس کو تسلیم کرتے ہیں, جس کو حدود و قیود کہتے ہیں تمام مذاہب کی. سزا جزا کا کانسیپٹ جو انصاف کا, جسٹس کا ہے, وہ ہے محکمات میں. نماز بھی اسی میں آتی ہے, جو باقی کا قرآن پاک ہے. سوری, نماز بھی اسی میں آتی ہے ذریعہ بھائی؟ میں صرف کلیئرٹی کے لیے پوچھ رہا تھا کہ جو سننے والوں کو کلیئرٹی ملے, کہ نماز اور یہ ساری چیزیں محکمات میں آ جاتی ہیں. جی, تمام عبادات, صحیح, تمام عبادات, تمام لاز ٹو بی انفورسڈ بائی دا اسٹیٹ, اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ اٹ سیلف, کہ اسٹیٹ کو کیسے اسٹیبلش کرنا ہے, اس اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرنے کے تمام چارٹر تک دیا ہے. سورہ شورا جو ہے خوبصورت چیپٹر ہے قرآن پاک کا, لوگ اس کو جس سے ہم ڈیموکریسی نکال لیتے ہیں, ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کر کے, جس سے ہم ڈیموکریسی نکال لیتے ہیں. جی, جس سے ایک اسکول ڈیموکریسی نکالنے کی گنجائش بناتا ہے, جو بھی وہ کسی دن وہ اس کو ڈسکس کریں گے کیسے بناتا ہے, اور کیسے میرے اندازے میں وہ غلط ہے, میں غلط سمجھتا ہوں اس کو. لیکن ود آل ڈیو ریسپیکٹ آف کورس, وہ ان کا دیکھیں قرآن پاک کسی کے اوپر ہر شخص سے اپنی زبان میں بولتا ہے. قرآن پاک کی یہ خوبصورتی ہے. وہ مولا علی کا قول ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, یعنی مائی سائڈ آف دا ڈائلاگ, مائی مونولوگ. اور جب میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. سو دا لارڈ سائڈ آف دی آنسر ٹو دی کوسچن دیٹ یو پٹ فورتھ ان یور پریئرز, نماز میں جو آپ نے پوچھے, نماز میں پوچھیں, قرآن میں جواب لیں. یہ اللہ تعالیٰ کے یہ اتنے خاص آدمی ہیں مولا علی, انہوں نے یہ ہمیں بتا دیا. رائٹ, صحیح ہے. اب میرے سوال کا اسی قرآن سے جواب نکلنا ہے جو آپ کے سوال کا نکلنا ہے, اور جو اربوں کا نکلنا ہے, جو ابھی تک اربوں لوگ آ کے جا چکے اور آئیں گے, انہی چیپٹرز میں سے اتنے ارب لوگوں کا, بلینز کا سوال کا جواب نکلنا ہے. صحیح. اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن نوز ہاؤ ٹو اسپیک دا لینگویج آف بلینز آف پیپل آن اینی گیون ڈے. رائٹ, اس لیے انہی 114 چیپٹرز نے جب اتنے بلینز کے جواب دینے نسل در نسل اور تا قیامت دیتے رہنا ہے, تو
اس کی جواب لازماً مختلف زبان میں ٹرانسلیٹ ہوں گے اس کے لسنر کو بیسڈ آن دا سرکمسٹانسز آف گروتھ آف دیٹ پرسن وین دیٹ پرسن از گیٹنگ دی آنسر. میں آج 2025 میں قرآن پاک کو جب پڑھتا ہوں تو مجھ سے وہی آیت اور زبان میں گفتگو کرتی ہے, جبکہ سن 2000 میں وہی آیت مجھ سے اور زبان میں گفتگو کرتی تھی, اور اس سے پیچھے چلے جائیں 20 سال تو اور گفتگو کرتی تھی. اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن اتنا زندہ کلام ہے کہ وہ مجھے میرے شعور کے مطابق گفتگو کرتا ہے مجھ سے. یہ بات سمجھیے گا میں آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں اس بات سے. جہاں جہاں محکمات ہوں گے وہاں سبمیشن اور سرنڈر ہے, جہاں جہاں محکمات نہیں ہیں وہاں قرآن کی اور میری بانڈنگ مجھے میرے اوپر میری انٹرپریٹیشن پہ لے کے چلے گی. یہ آپ سمجھیے گا. یعنی لاز سب نے ابائڈ کرنے ہیں کیونکہ لاز بینڈ کرنا صرف لا کے کریٹر کے پاس ہوتا ہے. نو ون از ابو دا لا ادر دین دا کریٹر آف دا لا. یعنی سپریم کورٹ کسی کو بری کر دے تو کر دے, سپریم کورٹ کے نیچے جو انصاف لینے آیا ہے وہ سپریم کورٹ کا تابع ہے. سپریم کورٹ کے اوپر اگر کوئی ہوگا تو وہ لا کو بینڈ کرے گا. اسٹیٹ پارڈن لے لیتا ہے مثال کے طور پہ, پریزیڈنشل پارڈن مل جاتا ہے کسی کو, تو وہ سپریم کورٹ سے بھی اوپر کا ڈیسیجن آ گیا پریزیڈنشل پارڈن, جبکہ سپریم کورٹ نے کسی کو سزا سنا دی یا ہائی کورٹ نے سنا دی یا کسی نے. جیسے پریزیڈنشل پارڈن آئے گا تو وہ کیا بتائے گا کہ ابو دا لا جو ہے صرف وہ لا کو بینڈ کر سکتا ہے, ورنہ بلو دا لا نے صرف لا ابائڈ کرنا ہے. تو ان ریلیجنس کانٹیکسٹ ابو دا لا از اونلی دا کریٹر. تو اس لیے لاز کی امپلیمنٹیشن میں ابہام کی ایمبیگوٹی کی گنجائش نہیں ہے. جیسے ہی باقی کا قرآن پاک آپ کے سامنے آتا ہے تو ایک دم سے آپ کو بریدنگ سپیس ملتی ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے میری زبان میں مخاطب ہیں, کیونکہ وہ میری نرشمنٹ کر رہے ہیں, مجھے گرو کر رہے ہیں, میرے وزڈم کو, میرے انٹلیکٹ کو. وہاں میری اور آپ کی تعبیر میں زمین آسمان کا فرق بھی آ جائے گا, اس کی گنجائش ہے. اوکے. although there is a school, دیکھیں یہ مختلف سکولز ہیں. اب یہ تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی بات, نہیں سر, لیکن جو جب دین کے اندر گنجائش آنا شروع ہوئی, یہ دور تھا کربلا کے بعد کا. بس کربلا سے پہلے تک اور ریلیجن تھا, کربلا کے بعد اچانک سے دین کے ماننے والے یتیم ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ جس گھر سے وہ دین کی تعبیر لیتے تھے اس گھر کو ہی گرا دیا گیا سب کی آنکھوں کے سامنے. بالکل. اور جو رہ گئے ان کو وہ منتشر ہو گئے. اب ایک دم سے روم بنا سوچنے کا کہ اب کیا کیا جائے. یہاں سے جب وہ کہتے ہیں نا شعر کا دوسرا مصرع ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, وہ مطلب کیا ہے اس بات کا کہ اب یہاں سے پہلا نیوکلیر ایکسپلوژن ہوتا ہے حسین علیہ السلام کی شہادت سے. ریلیجن بلاسٹ انٹو ا بگر فریم ورک آل ٹوگیدر. یہ ہے 7th century آف ہجرت آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. جی سوری 7th century آف ریگولر جو کیلنڈر کرسچن ایرا, جس کو اب ہم CE کہتے ہیں, AD. اور یہ 1st century آف ہجرت ہے, چل رہی ہے 1st century. ہجرت کی آقا علیہ السلام کی ہجرت کا پہلا 100 سال چل رہے ہیں. پہلے 100 سال میں 60-70 years down the lane, religion blasts into another shape. یہ ہے وہ ایرا جہاں سے یہ آپ کے امام ابو حنیفہ, امام جعفر صادق, امام مالک, امام شافعی, یہ وہ چین اسٹیبلش کرتے ہیں. اب چاروں نے مختلف, یہ امام اربعہ جیسے اہل سنت میں امام اربعہ ہیں یہ چار, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام ابو حنیفہ, امام مالک. اسی طرح 4 فقہائے اربعہ ہیں اہل تشیع کے. اسی طرح 4 فقہائے اربعہ ہیں اہل تصوف کے. یہ حسن بصری سے چلتے آ رہے ہیں, جو حسن بصری مولا علی کے پاس ایز انفنٹ پرورش لے کے گئے ہیں. ان کے بعد یہ رابعہ بصری آئی ہیں جو ایک ہی آلموسٹ ایرا میں ایک ملاقات بھی ہے ان کی آپس میں کوئنسیڈنٹل سی. اس کے بعد ایک چین ادھر سے آ رہی تھی تصوف کی, ایک چین آ رہی تھی اہل بیت کی, ایک چین آ رہی تھی اہل بیت کے ماننے والے اہل تشیع کی, ایک چین آ رہی تھی اہل سنت کی. اہل سنت کون؟ جو اہل سنت والجماعت کا کانسیپٹ اسٹیبلش ہوتا مولا علی کے دور میں, وہ اہل سنت والجماعت کے لوگ تھے. یہ 3-4 سکولز حسین علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد ایکسپینڈ ہوتے ہیں, بلاسٹ ہوتے ہیں انٹو 5-6 مکاتب فکر.
चलिए अब सॉरी एक सेकंड, उस वक्त बड़ी गुंजाइश है। एक सेकंड, तो ये यानी कि इसका जो यानी कि ये जो आपने जिस तरह से भी बताया डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, यानी कि ये उस वक्त तक कायम तो हो चुके थे, मतलब एक बहुत ही प्री मेच्योर शक्ल में मौजूद हो गए, मतलब बन टाइम चुके हो रहे थे, प्री मेच्योर सी शक्ल हो रहे थे। देखें उस टाइम ना, उस टाइम जैसे हिटलर ने जब जर्मनी को क्लेंजिंग शुरू की थी ना, एथनल क्लेंजिंग ऑफ द ज्यूज, जी। हॉलोकॉस्ट, उस टाइम उसने सबसे पहले कहा था कि मुझे सबसे पहले पढ़े लिखे ज्यूज कत्ल करने हैं। आइंस्टाइन भागा था, अमेरिका ने पनाह दी थी, क्योंकि आइंस्टाइन से बड़ा कौन पढ़ा लिखा आदमी था जो डेंजर था हिटलर के लिए, क्योंकि ये लोग फिक्री नशोनुमा कर रहे होते हैं रियाया की, आम आवाम की, मैसेज की। आइंस्टाइन भागा, सारे जितने डॉक्टर्स को उसने पकड़ लिया, असीर कर लिया, डॉक्टर्स को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल के कहा था बंदे बच्चे जोड़ो आपस में, सी दो उनको, ये करो, और उल्टे सीधे तजुर्बे शुरू कर दिए। इसी तरह एथनिक क्लेंजिंग हो रही थी हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर में, फॉलोअर्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ओके, लिटरली वाकया हर्रा, खाना काबा में आग लगी है, घोड़े गधे वहां पे बांधे गए हैं, रात 3 दिन वहां पे घोड़े गधे जो हैं वो लिटर करते रहे हैं खाना काबा में। ये क्यों नहीं बताई जाती बात? आग लगाई है उसने खाना काबा। सही बात है। वाकया हर्रा इज द मोस्ट डार्केस्ट पीरियड ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री। सड़कों के ऊपर सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम की बच्चियों की इज्जतें पामाल की गई हैं, आगे से उनकी चाइल्ड बर्थ हुई है उस प्रोसेस में, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वुमेन ऑफ इस्लाम। ये जो डार्क पीरियड आया, ये वही एथनिक क्लेंजिंग थी जो हिटलर ने हमारे टाइम पे 2000 यानी हमारी सदी में 20th सेंचुरी में हिटलर ने जर्मनी में की। जैसे अब जर्मनी जब रीग्रो हुआ तो आया ना दुनिया में सबसे उरूज पे, टॉप 10 मुल्कों में, अगर इफ नॉट टॉप 5 देन एटलीस्ट टॉप 10 में दुनिया की इकोनॉमी में खेल रहा है ना। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा सानिया जब वो पजीर होता है तो वो वर्स्ट रॉक बॉटम टच करके एकदम से फ्लाइट लेते हैं। ये नेचुरल फिनोमेनॉन है, हमारी सारी सिविलाइजेशन ऐसे ही एक्सप्लोड होती हैं, ऊपर जाती हैं, इंफॉर्मेशन का एक्सट्रीम लेती हैं, ब्लास्ट होती हैं, फिर जीरो से शुरू करती हैं, स्टोन एज से फिर एस्टेब्लिश होती है। यहां से इस्लाम का अरूज शुरू होता है। फिर ये कदरिया, तो जबरिया, तो जहमिया, तो अशरी, तो मुतजिला, तो अलमातुरिदिया, ये स्कूल्स हैं, ये बड़े स्कूल्स हैं, स्कूल्स ऑफ थॉट, और बंदों के नाम पे हैं। जहमिया जो है जहम के नाम पे है, जिसको पब्लिकली जिसको स्लेन किया गया, यानी एक्सिक्यूट किया गया। पहली इस दौर की फांसी थी, पहली नहीं सेकंड थी एक्चुअली, लेकिन ये पब्लिक फांसी थी। फिर ये अशरी आए, फिर जो इनकाउंटर ऑफ मुतजिला ये इस्टेब्लिश हो रहा है, ये वही दौर है। फिर आगे इमाम गजाली आ रहे हैं, ये अबू सीना का दौर है, इब्न सीना का दौर है, 8th सेंचुरी की बात है, 9th सेंचुरी की बात है, जिसकी मैं आपको बात था। यहां से रिलीजन एकदम एक्सट्रीम लेता है। पैरेलल में वही तसव्वुफ जो जुडेक गुफ्तगू पे तसव्वुफ था, जो हिंदुइज्म की गुफ्तगू में तसव्वुफ था, जो बुद्धिज्म की गुफ्तगू में, ये 5 सेंचुरी पीछे चले जाएं ईसा अलैहिस्सलाम से, वहां से ये तसव्वुफ आता जा रहा था, अपनी चेन चलाता जा रहा था। इधर ये सानिया वकूफ पजीर हुआ तो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की। तसव्वुफ ने भी इस्लाम कबूल किया, तसव्वुफ ने अपना रिलीजन को जितना इंप्रूव किया है बासित भाई, उतना मुसलमान ने नहीं किया। इसीलिए सूफी लोगों ने बड़े सगीर को मुनव्वर किया दीन से। जी जी। वरना मोहम्मद बिन कासिम तो पहले बैत के फैमिली को कत्ल करने आया था, जिसको बड़ा इन्होंने चढ़ा दिया, हीरो बना दिया। He was here to murder the daughters, the family members of the Prophet sallallahu alaihi wasallam। वो हुसैन अलैहिस्सलाम की चेन को ऑब्लिटरेट करने के मकसद से भेज दिया था हज्जाज बिन यूसुफ ने उसको। उसका दामाद भी था, ये उसका चचादाद भाई भी था। यहां पे रिलीजन तसव्वुफ ही लेके आ सकता था, क्योंकि इस खित्ते में ऑलरेडी तसव्वुफ अपनी एक्सट्रीम को टच कर चुका था। थॉट देख, तसव्वुफ क्या होता है? तसव्वुफ इन सिंपल वर्ड्स एक्सेस ऑफ द डिवाइन नॉलेज होता है। तो डिवाइन नॉलेज का मयार ऑलरेडी इस्टेब्लिश था। ये पर्शियन साइड पे, ये इंडो पाक साइड पे, यहाँ पे ये सारा वो रीजन ऑलरेडी मुनव्वर था इल्म के। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे इल्म नहीं था। यहाँ ये इल्म के जितने बड़े बड़े जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये सारे इस इलाके के लोग थे। जी जी बिल्कुल। इंडिया, चाइना वो उस टाइम पे तो टॉप पे था अपने। जी 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 जी। ये इधर जो चाइनीज डायनेस्टी चली आ रही है, ये 5वीं सेंचुरी BC से चली आ रही हैं, और ये डायनेस्टीज इल्म के जोर पे चली आ रही थी। बुद्धिज्म जो है ये किताबी सूरत इख्तियार कर चुका था ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। ईसा अलैहिस्सलाम से पहले किताब की सूरत में बुद्धिज्म आ चुका था, ताओइज्म आ चुका था, जिसको डाओइज्म भी कहते हैं।
یہ کتابیں چھپ چکی تھی, یہ رامائن جو چھپ چکی ہے اس ٹائم تھی کسی اور زبان میں, یعنی یہ بعد میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کی تلسی داس نے, یہ بعد میں اس کو کلوز ٹو سنسکرت لے کے آئے. یہ اپنے اوریجنل زبان میں کتاب کی صورت میں موجود تھا 5000-4000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے, 4000 years before عیسیٰ علیہ السلام. So this region was already there, but یہاں سے پھر جب ریلیجن آتا ہے اور یہ پیرلل میں 4-5 سکولز برسٹ ہوتے ہیں, فکر کو نشو نما ملتی ہے, فکر گرو ہوتا ہے, فکر کو ڈائٹ ملتی ہے, فکر ایکسپینڈ ہوتی ہے. یہ وہ دور ہے جہاں سے حسین علیہ السلام کی قربانی کے بعد سے اسلام اپنے پہلے بڑے پلرز اچیو کرتا ہے, پھر آگے چل کے امام اربع اور یہ سارے اسٹیبلش ہوتے ہیں. آج ہم اسی کی دین میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے. دس از ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. صحیح. تو اچھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ کربلا کے بعد اس جو بیسکلی اس جو تصوف ہے اس کو پش ملا اور پھر یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوا اور یہ ساری. اچھا تو اب یہ بتائیں ذریعہ بھائی, اس کو ٹورڈز دی اینڈ جو ہمارے مکتب فکر ہیں مین ان کو کہتے ہیں یہ ادھری سے اسٹیم ہوئے ہیں. اب ظاہر اس طرح کی بہت ساری باتیں آتی ہیں, اس طرح میں نے آپ کو شروع میں مثال دی تھی چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ والی. اب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, یہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا تصوف کی بگڑی ہوئی شکل ہے یا ویئر ڈز آل دس اسٹینڈ؟ وہ جو سارے واقعات ہیں کہ جی وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ اس سے مینار سے گر رہی ہیں تو وہ کیچ کر لیا کسی نے جا کے, یہ ساری اس طرح کی بہت ساری کہانیاں ہیں اس طرح کی. تو یہ کیا بگڑی ہوئی شکل ہے تصوف کی یا آپ سمجھتے ہیں اس کو لوگ نہیں سمجھ رہے؟ یہ دونوں میں فرق پلیز بتائیے گا اس کا. دیکھیں جہاں تک اشرف علی تھانوی صاحب کا تعلق ہے تو اشرف علی تھانوی صاحب از اے سیکنڈ جنریشن آف دیوبند. فرسٹ جنریشن از شیخ محمود حسن جو شیخ الہند تھے, محمود حسن صاحب, ساتھ گنگوہی صاحب, ننوتوی صاحب, یہ 3 لوگ تھے, 4 لوگ, شاہ عبد الغنی دہلوی, یہ 4 لوگ تھے جنہوں نے دیوبند اسٹیبلش کیا تھا. یہ فرسٹ جنریشن تھی. سیکنڈ جنریشن میں اشرف علی تھانوی. آپ مجھے یہ بتائیں, دیوبند کو ایک فنڈامنٹلسٹ اسکول کہا جاتا ہے, اسٹرکٹ. دیوبند میں گنجائش نہیں ہے اتنی بدعت کی جتنی لوگوں نے سمجھا ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب کے ساتھ جوڑی جا سکتی. اشرف علی تھانوی صاحب بہت اینٹی بدعت تحریک لے کے چلے تھے. یہ تو بعد میں جا کے احمد رضا بریلی نے ان کو ریزسٹنس دینے کے لیے کہ اتنا اینٹی تصوف کام شروع ہو گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں حیران کن بات, اشرف علی تھانوی صاحب کے خلاف سکول اسٹیبلش کیا تھا احمد رضا بریلوی نے کہ یہ اتنا اینٹی تصوف گفتگو کرتے ہیں, اور لوگ آج کیا گفتگو کر رہے ہیں کہ تھانوی صاحب نے کلمہ پڑھا دیا تھانوی رسول اللہ. It means you're talking about someone who is very much against the whole concept of tasawwuf. The only difference is کہ اشرف علی تھانوی صاحب جو ہیں وہ جس منہج پہ ہیں وہ منہج تصوف کی دین ہے. دیوبند کو کریٹ کرنے والے صوفی ہیں, یہ جن کا میں نے نام لیا نا, شاہ عبد الغنی دہلوی, یہ محدث تھے اور یہ لائٹ آف نالج لیتے ہی تصوف فیملی سے تھے, شاہ ولی اللہ فیملی سے. اب اس لیے ان کی گفتگو میں یہ تصوف کی جھلک آپ کو دکھائی دی, لیکن یہ اسپرچولیٹی سائڈ کی جھلک ہے بائی دا وے. بٹ اسٹل آپ جسٹ فار اے لے مین تصوف کی جھلک دکھائی دی. اب کرنے کو میں یہ ڈیفینڈ علمی طریقے سے بھی کر سکتا ہوں کہ اشرف علی تھانوی صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے, لیکن میں کیوں کروں؟ کل آپ کی ویڈیو کے اوپر وہ لوگ کہیں ذریعہ ہاشمی جو ہے وہ کسی کے کلمے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, میں عوام کے سامنے یہ گفتگو کیوں کروں؟ وہ عوام کی گفتگو ہی نہیں تھی, وہ خواص کی گفتگو تھی. دیکھیں سرٹن تھنگس, میں آج آپ کے سامنے خلفائے راشدین کے دور کی 4 باتیں ایسی کر دوں آپ کا چینل بند ہو جائے گا. خلفائے راشدین کی گفتگو میں آپ کہیں گے یار دریاب بھائی کیسی باتیں کریں, یہ میں پبلک نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر آپ خلفائے راشدین کی باتیں پبلک نہیں کر سکتے تو آپ تھانوی صاحب کی کیوں پبلک کر رہے ہیں بھیا؟ It is as dark, grey, ambiguous as anything can be, and it needs to be protected. یہ جوہلا کا رجحان ہوتا ہے کہ اپنے اکابر کی وہ چیزیں عیاں کرنا جن کو انہوں نے اپنے وائزسٹ مومنٹ میں کسی سٹیج پہ لاک کر دیا ہو. اس کو سمجھیے گا میری بات. جیسے ابھی ہم نے گفتگو شروع کی تھی تو انڈیا پاکستان یا انڈیا فلسطین کی گفتگو تھی, تو میں نے کہا تھا فار دا سیک آف نیشنل انٹرسٹ سرٹن سیکرٹس آر کیپٹ سیکرٹس, لیکن سرٹن تھنگس شوڈ بی ریویلڈ. جس کو مزید یہ
जी, ये उसी फहमो फिरासत को डिमांड करता है जो फहमो फिरासत स्टेट के पास होती है कि थानवी साहब के बारे में गुफ्तगू होगी या चिश्ती रसूलुल्लाह की गुफ्तगू होगी या ऐसे कोई मामला टच होंगे जो अवाम की गुफ्तगू, अवाम या तो अपना स्टैंडर्ड ऊपर ले आए, जो कि हो नहीं सकता, नेचुरल प्रोसेस है, इसीलिए उनको अवाम कहते हैं, वो आम आदमी होते हैं। आम आदमी की गुफ्तगू और होती है, खास आदमी की गुफ्तगू और होती है। उनके बीच में ब्रिज बनने वाले होते हैं स्कॉलर्स, मुबल्लिग, टीचर्स, फिलोसोफर्स, ये ब्रिज करते हैं। उसको हाइड करके ट्रांसलेट इनटू रीडेबल अंडरस्टैंडेबल थिंग, उसको चेंज करके अवाम के सामने खूबसूरत तोहफे की सूरत में पेश करते हैं। जो आके ऐसे डेंट डालता है अपने ही अकाबरीन की गुफ्तगू में, वो अपने आप को अपने उन अकाबिर से ऊपर रखने की नाकाम कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दे दी आपके अकाबरीन को। आप अरवा में बैठे हुए इस दौर में उनके बच्चे बरखुरदार बन के पैदा हुए हैं, किसी वजह से बच्चे बरखुरदार बन के पैदा हुए हैं। अल्लाह ताला की कुदरत में ये था कि आपको आका इस्लाम के दौर में पैदा कर, आपको इस काबिल नहीं समझा, आपका वो जानते हैं वो आप किस काबिल हैं, आपको वहां प्लेस किया है, तो वहां पे अपना मकाम इज्जत से इस्टेब्लिश करें, कोई भी हो। यानी नुक्ताचीनी तनकीद एक चीज होती है, उस तनकीद का प्रचार और चीज होती है। मैंने तनकीद करनी है, मेरे तनकीद के पैराए मुझे पता होने चाहिए कि मैंने किस किताब में किस तरीके से, किस हदूद व कयूद के साथ, किन अल्फाज के चुनाव के साथ तनकीद करनी है, ताकि वो वहां पहुंचे जहां पे उसका इंपैक्ट हो और मेरी तनकीद के नतीजे में कोई चीज बेहतर की जा सके। अगर मेरा मकसद ही उस तनकीद को कैश करना, उस एस्पेक्ट को, उस नक्स को कैश करके अपनी कोई शोहरत या अपना कोई स्कूल इस्टेब्लिश करना है, तो मुझे एटलीस्ट इतना ज़र्फ होना चाहिए मुझ में कि मैं कहूं कि भाई ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने आप को उससे अफजल, बेहतर और अपने स्कूल को उससे बेहतर कह के अनाउंस कर रहा हूं। आ जाओ मेरे स्कूल में, उनके मानने वाले सब बैत तर्क करो और मेरी बैत कर लो। ईदर आई शुड बी ब्रेव इनफ टू से दैट, or I should at least be honest enough to say I'm doing this only to get some mileage. तनकीद का तो तरीका मैंने छोड़ दिया ना, ये तो मैंने कुछ और तरीका शुरू कर दिया। तनकीद का तरीका और होता है और हल्के होते हैं जहां पे तनकीद की जाती है। पब्लिक में तनकीद नहीं की जाती, पब्लिक में तनकीद की जाती है पब्लिक मैटर्स से मुंसलिक चीजों की। जैसे स्टेट चीनी महंगी कर दी, आटा महंगा कर दिया, मैं इसको पब्लिक में तनकीद फैला सकता हूं ताकि पब्लिक अवेयरनेस हो वो स्टेट को, क्योंकि उनके वोटों से आए हुए हैं ये लोग। कल वो वोट देते हुए सोचेंगे ये शख्स हमारे भूख और अफलास का ख्याल नहीं रखता। इस तनकीद का इंपैक्ट ही ऐसे आता है। जिस तनकीद का इंपैक्ट नेगेटिव आता है तो उस शख्स को तनकीद की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए जिसको ये ना पता हो कि उसके हाथ में किस लेवल का वेपन आ गया है, उससे वो मैसेज मारना शुरू कर दिए उसने। इट्स लाइक एन इलिटरेट गाय हैज सम बिग वेपन इन हिज हैंड एंड ही इज गॉन berserk। ये फसाद फैलाने वाले लोग होते हैं। ऐसे फसादियों को स्टेट को चाहिए कि उठा के अंदर कर देना चाहिए। तो कुछ दिन अंदर रहेंगे तो समझ जाएंगे तनकीद का तरीका क्या होता है। उनको अंदर सिखाने वाले टीचर्स भी मौजूद होते हैं कि तनकीद कैसे की जाती है। जरिया भाई, अभी आपने मेंशन किया कि ये जो थानवी साहब थे, इनका जो है उससे ताल्लुक नहीं था, क्या कहते हैं, इससे सूफीइज्म से कोई ताल्लुक, तसव्वुफ के डायरेक्टली ताल्लुक नहीं, अगेंस्ट आए थे। लेकिन इसमें जो इस तरह के वाकयात बीच में आते हैं, तो ये तसव्वुफ की लाइन, मतलब तो क्या मतलब वो फॉलो करते थे कि नहीं करते थे? ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग बात नहीं हो गई यहाँ पे? देखिए, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि तसव्वुफ कोई ऐसी जुदागाना चीज नहीं है जो एक लिबास की तरह है कि किस ने ओढ़ी हुई है। ओके, सही। तसव्वुफ वो नॉलेज है दैट लाइज विद इन एवरी सिंगल पर्सन, बी इट ऑफ एनी रिलीजन और क्रीड। अब उसने जितना एक्सेस किया है उतना इंटरप्रेट करके उसने बयान करना शुरू कर दिया। उस बयान को समझने के लिए भी सुनने वाले का मयार वहीं होना चाहिए जिस मयार पे वो गुफ्तगू कर रहा है, क्योंकि वो तो एक हिडन चीज, बातिन का एक्सेस ले लिया उसने। अब वो अशरफ अली थानवी साहब हो या वो शाह वलीउल्लाह हो या वो अली अजमेरी हो, जिसको जितना एक्सेस मिला उसने वो बयान करना शुरू किया। उस बयान की इंटरप्रिटेशन, ट्रांसलेशन और तफसीर ताबीर जब लोगों तक आम हुई तो आम लोगों को उसकी समझ से बाला हो गई। वो जैसी वो हुई, बाला हुई, तो यहां उन लोगों की जिम्मेदारी आई जो उसका ब्रिज बन सकते थे। वो मेरे आप जैसे लोग हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, वो स्कॉलर हो सकता है। उसने अगर वो ट्रांसलेट करने की बजाय उसको एक्सप्लॉइट किया है तो ये उसकी नेक नीति को अलार्म बेल बज गया कि नीयत में कोई फितूर है। इसको चाहिए क्या था कि उसकी
पोजीशन रिकॉग्नाइज करे, चाहे वो अशरफ अली थानवी साहब हों जो एज अ स्कूल एंटी तसव्वुफ आए थे, लेकिन एज अ पर्सन तसव्वुफ इंक्लिनेशन रखते थे, जो उनकी गुफ्तगू से यहाँ हो गई, उनकी कुतुब से यहाँ हुई। वहां पे देवबंद के दीगर उलमा का फर्ज बनता था कि अपने अकाबिर को के डिफेंस के अंदर ऑलरेडी पब्लिकेशंस एस्टैब्लिश करें इन डिफेंस ऑफ व्हाट द टीचर हैज सेड। सही। ये गैप उन्होंने फिल नहीं किया और ये बातें पब्लिक से बाहर निकाले क्योंकि ये खास लोगों की बातें थी और जो भी इस तरह के मामला थे जो कि मिस इंटरप्रेट हो सकते थे, या अब हो गई हैं। अब देखें, जो चीज पब्लिक हो गई है वो अनपब्लिक तो नहीं कर सकते आप। इट हैज नाउ टच्ड द पब्लिक सेंसेस। अब आप उसके डिफेंस में आएंगे सॉरी, अब आप उसकी डिफेंस में आके उसकी इंटरप्रिटेशन रिवाइज करके लोगों को देंगे, और अगर उनको तसल्ली नहीं होती तो बार बार करेंगे, क्योंकि आपके अकाबिर क्वेश्चन हो गए हैं, कटहरे में खड़े कर दिए गए, ही इज नॉट अलाइव टू डिफेंड हिमसेल्फ। नाउ हु हैज द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ? द फॉलोअर्स। मैं अगर देवबंद से ताल्लुक रखता होता तो सब, मैंने जैसे आपको पहले कहा, सबसे पहले मैं डिफेंस में उतरता कि मैं बताता कि इस कलमे का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन, यूटिलिटी क्या है, किस डिफेंस के मुताबिक इनको आप मुबर्रा करेंगे उस जुर्म से जिस जुर्म का सजावार ठहरा रहे हैं आप उनको। राइट। अच्छा जरिया भाई, इसको मैं इसी वजह से हमने सूफीज्म के बात शुरू की और फिर जाहिर है कि जब पाकिस्तान में ये, तो अब जिस तरह आपने कहा अशरफ अली थानवी साहब, वो उसके उन्होंने आई एम प्रीटी श्योर देखा होगा कि कुछ हालात खराब ज्यादा हो रहे हैं, आई गेस तसव्वुफ किसी नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, तो इसीलिए उसके अगेंस्ट आए होंगे वो, उसको रोकने के लिए कि भाई इस्लाम। वो नहीं, उनसे एक जनरेशन पीछे वाले, गंगोही साहब, ननोतवी साहब, महमूद हसन साहब और ये अब्दुल गनी साहब, ये थे जिन्होंने देवबंद 1860s में एस्टैब्लिश किया था। ये सेकंड जनरेशन है। अशरफ अली थानवी साहब सेकंड जनरेशन ऑफ देवबंद। ये फर्स्ट जनरेशन आई ही इसलिए थी, देखें ये वो दौर था जब 1860s का मतलब ये है कि 1857 की म्यूटनी कोलैप्स हुई थी हमारी। हमने जो जंग आजादी ट्राई की थी वो हम फेल हुए थे और हम बहुत नुकसान हुआ था, तो रीस्टैब्लिश हो रहे थे राइट मुसलमान। तो जब रीस्टैब्लिश हो रहे थे तो जगह जगह मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट जो हैं, स्कूल्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स एस्टैब्लिश कर रहे, इंस्टीट्यूट्स के सूरत में एस्टैब्लिश करना शुरू कर रहे थे। ये वो दौर था 1800s के एंड में। देवबंद, मकतबा फिक्र, ये बरेलवी, अहले हदीस, ये सब एक ही एरा के, एक ही टाइम के 10-20 साल के गैप, 30 साल के गैप में एस्टैब्लिश हुए। तो ये वो दौर ऐसा था कि ये यहाँ से रेजिस्टेंस शुरू हुई और फिर रिटेलिएशन में फिर अहमद रजा बरेली ने तसव्वुफ के डिफेंस में ये बरेलवीज़म एस्टैब्लिश किया, किताबें लिखनी शुरू की देवबंद के खिलाफ, अहले हदीस के खिलाफ, कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप हमारे अकाबरीन के बारे में ऐसी गुफ्तगू क्यों करते हैं, व्हाई डू यू रिजेक्ट दिस प्रैक्टिस, इसमें ऐसा नहीं है। वो डिफेंस आया ना, जैसे मैं अभी कहता कि एक डिफेंस आना चाहिए था, वो डिफेंस उन्होंने दिया, तो उस डिफेंस के ऊपर पूरे पूरे स्कूल एस्टैब्लिश हो गए। फिर इन स्कूलों ने कहाँ पॉलिटिकल शेप इख्तियार की जब पाकिस्तान बन गया, और फिर कहाँ मिलिटेंसी इख्तियार की, ये भी कभी डिस्कस करेंगे, एक्सपेंडेड। नहीं तो जरिया भाई, फिर मैं असल में आई होप आपको अभी तक समझ आया होगा, मैं इसकी जड़ पे जाना चाह रहा हूँ। जिस तरह आपने भी बोला ये 1850-60s के अंदर ये सब, जाहिर है कि इनको एक जरूरत भी फील हुई कि यार ये कोई तसव्वुफ जो है वो इस्लाम की कोई नई शक्ल क्रिएट करना चाहिए, और जो एक कोशिश शुरू हुई, ठीक है, हाँ, एक प्रैक्टिस शुरू हुई, और फिर इस तरीके से बरेलवी और फिर देवबंदी और ये सारी चीजें। अब कहने का मकसद है कि फिर इसका मतलब है बुराई, यानी कि जो बुराई कह लें उसको या गलती कह लें, ये वहीं पे ही हो गई ना, क्योंकि वहां ये जो अकाबिर थे इनका ये काम बनता था कि भाई, जिस आपने बोला कि भाई एक इंटरप्रेट करना है आम आवाम के लिए चीजें, और इस चीज को समेटना है। ये तो आपको नहीं लगता तो आपस में लड़ना शुरू होगा उस टाइम पे? हम 2025 में बैठ के ये कहना बहुत आसान है, ओके, और वो भी एक इंडिपेंडेंट सो कॉल्ड, सो टू स्पीक, बाय डेफिनेशन इंडिपेंडेंट स्टेट में, जहां पे आपके पास ये स्पीकर का राइट भी है, बीइंग अ स्पीकर, और आप जिस मर्जी तरह की इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। ये अब हम ये बातें कर सकते हैं। जो दौर मैं आपको बता रहा हूँ 1857 में, वी वर बुचर्ड, इतना खून इकट्ठा हुआ था 1857 की जंग आजादी में कि लोग उस खून के अंदर, लाश जो थी वो नजर नहीं आती थी, खून इतना लाश के, लेटे हुई लाश के ऊपर आ जाता था, इतनी खून की दरिया बह चुके थे 1857 की जंग आजादी में। वहां पे फिर बोलने पे, बयान पे, इन चीजों पे कतगन थी, आप हर बात को पब्लिक नहीं कर सकते थे। तो ये फिर हिडन अंडरग्राउंड सोसाइटीज की सूरत में ये स्कूल्स ऑफ थॉट इस्टेब्लिश हुए थे। वहां पे फिर जो लोग बैठा करते थे वो किसी बड़े को, उस्ताद को गुफ्तगू करते देखते थे तो उसके नोट्स बनाते थे। अब उस्ताद अपने ये, अब ये किया, अब ये नमाज पढ़ी, इस तरह से पढ़ा, उन्होंने कोई किस्सा जिक्र किया, वो नोट्स बनते गए। जैसे प्लेटो, सोक्रेटिस के नोट्स बाद में आए, उनकी अपनी किताबें तो सामने ही नहीं आई, तो ये वो नोट्स बनते 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 उस नोट्स को आगे चलाते चलाते चाइनीज विस्पर ने क्या से क्या बनाया, इसका क्या सबूत है? राइट। ये वो बातें हैं
जो स्कूल्स में चलती थी और चलानी भी थी, कोई कल्चर का भी हिस्सा थी। अब जब 1900s का दौर शुरू होता है और ये काविशें एक रियासत बना देती हैं और ये सब लोग उस रियासत में आके रीस्टैब्लिश होते हैं और पब्लिकेशन शुरू कर देते हैं। अब हजरत अली हिजवेरी 11वीं सदी के आदमी है, 11th सेंचुरी ईस्वी जी, उनकी आज मैं किताब पढ़ूं कशफुल माजूब, तो मुझे क्या यकीन आना चाहिए उस किताब के ऊपर। सही बात है। मैं तो यकीन करें कुरान पाक की तफसीर पढ़ता हूं तो हैरान रह जाता हूं। तो ये तो इंसानों की किताबें हैं। इंसानों की किताबें अपनी किस सूरत में क्या क्या बन के कैसे नुमायां होती हैं, नमूदार होती हैं, उसका डिफेंस करने वाले उसके स्कूल के फॉलोअर्स होते हैं। मेरा चूंकि ये स्कूल नहीं है, मैं खाली ये आपको उसकी डेफिनेशन बता रहा हूं कि अगर मैं इनके डिफेंस में आऊं तो मैं आना चाहूं तो मैं इल्मी डिफेंस कर सकता हूं, लेकिन मेरा ये काम नहीं। मैं रिलीजन को एज अ सब्जेक्ट पढ़ता हूं, मैं राइटर हूं, पोएट हूं। मुझे ये मेरी पोइट्री जो है वो थियोलॉजी की फिलॉसफी पे बेस करती है, इसलिए मेरा इंटरेस्ट है। हिस्ट्री वैसे मेरा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसलिए मुझे ये चीजें पता है। इसलिए मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं कि जो सुन रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि अगर वो किसी स्कूल को मानते हैं, किसी स्कूल के शेडो में अपनी जिंदगी बेस करते हैं, तो उनके ऊपर ये बुनियादी फराइज हैं, ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टू रीड एंड एजुकेट देमसेल्व्स ऑफ देयर टीचर्स एंड ब्रिंग अ सॉलिड पेपर डिफेंस कि ये है जी डिफेंस। अब उसके ऊपर कोई 10 तनकीदें करे, 11 करे, इल्मी तरीके से करे। इल्मी डिफेंस होता है इल्मी गुफ्तगू का। एग्जैक्टली हाँ, यही एक्चुअली आपने अच्छा इसको एक्चुअली रैप अप किया कि यही मेरा एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू था, और आपने प्रीटी मच सोल्यूशन ही दे दिया कि भाई अगर आप एक सर्टेन स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो कर रहे हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ एंड डिफेंड ये सारी चीजें इसके असल पर्सपेक्टिव में। जबरदस्त ज़रिया भाई, बड़ा आई थिंक बड़ा कंक्लूसिव इस चीज के ऊपर डिस्कशन हो गया। और अच्छा एक बात और मैं सॉरी ऐड कर दूं, देखें एक एस्पेक्ट जो मुझे आपके सवालों से लग रहा है कि मिस हो रहा है, तसव्वुफ को या सूफीज्म को जिसने एक्चुअल में समझना हो, सीखना हो कि ये क्या है, जैसे कोई फिजिक्स पढ़ना चाहता है, केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, तो उसको वो कौन से रहनुमा उसूल हैं। मैं जो एज अ स्टूडेंट ऑफ फिलॉसफी, एज अ स्टूडेंट ऑफ थियोलॉजी, मैं जो मशवरा दे सकता हूं लोगों को वो ये है कि जिस शख्स के साथ तसव्वुफ की कोई एसोसिएशन हिस्ट्री इस्टेब्लिश करती है, जैसे आपने अशरफ अली थानवी साहब का जिक्र किया, या इनसे पीछे चले जाएं तो मंसूर हलाज जो है, एक हुसैन बिन मंसूर हलाज एक कंट्रोवर्शियल फिगर है कि वो तसव्वुफ की बुनियाद पे कत्ल किए गए, स्टेट प्रोसिक्यूशन है उनकी, एक्सिक्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन तसव्वुफ इस्तिलाह, द डेफिनेशन, द टर्म्स ऑफ टर्मिनोलॉजी ऑफ तसव्वुफ की बेस पे उनको सजाए मौत दी गई। अच्छा okay. अब जब ऐसा कोई शख्स आप मुझसे डिस्कस करेंगे ना, तो मैं आपको कहूंगा बासित भाई टाइम कम है हमारे पास, 1-2 घंटे, मैं आपको मंसूर की डेफिनेशन में मज़ामीन लिख के दे सकता हूँ और बयान करके दे सकता हूँ। लेकिन जैसे ही आप उलमा देवबंद में से किसी शख्स को या अहले हदीस में से किसी शख्स को या किसी पीर फकीर खानकाह के किसी सिलसिले के किसी शख्स को आप तनकीद की निगाह से देखेंगे तो मैं डिफेंस में नहीं आऊंगा। मैं ये जरूर बताऊंगा कि उनकी डिफेंस क्या है, कहाँ है, किन किताबों में ढूंढो, मिल जाएगी, ना मिली तो मैं अकेले में नॉन पब्लिक तरीके से आपको समझा दूंगा कि उसकी डिफेंस क्या है, बिकॉज आई नो द एंगल फ्रॉम वेयर दीज पीपल कम फ्रॉम। देखिए मैं ये हर जगह पे मैंने ये बात कहने की कोशिश की है, किसी शख्स के बारे में भी पढ़ें, किसी शायर के बारे में पढ़ें, किसी मुसन्निफ की किताब पढ़ें, ड्रामा देखें, किसी की फिल्म देखें, मूवी देखें, कुछ उस शख्स की सवाने हयात एक्सप्लोर करें, उस शख्स का हुदूद अरबा निकालें कि उस एरिया में, उस एरा में, उस दौर में क्या फिक्री तकाजे थे, तब आपको पता चलेगा कि वो शख्स बोल क्या रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है, उसके बात में छुपे हुए अल्फाज में बिटवीन द लाइंस मैसेज क्या है, कौन सी चीजें वो खोल के बयान कर रहा है। हम क्या करते हैं, हम हिस्ट्री में से किसी शख्स का नाम उठाते हैं और उसको रगेदना शुरू कर देते हैं। अशरफ अली थानवी साहब की 2000 से ज्यादा किताबें हैं बासित भाई, एक किताब नहीं लिखी हुई किसी शख्स ने जो उसके ऊपर तनकीद कर रहा है।
आप पहले किसी के कैलिबर पे आए, कोई भी शख्स हो, किसी की कैलिबर को छोड़ें, आप उसके कैलिबर पे क्या आना, उसकी तसानीफ ही पढ़ लें सारी, तो मैं कहूँ आपने उस शख्स की 2000 किताबें पढ़ ली हैं, अब आपको समझ आ जाना चाहिए वो शख्स क्या बात कर रहा है। उसके बाद वो तनकीद करने की वो सकत ही नहीं रखेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा मैं किस बंदे के बारे में क्या बात कर रहा हूँ। और जरिया भाई, मैं वैसे ऑडियंस के लिए एक चीज इसमें ऐड भी कर दूं कि हाँ, और मुझे भी मेरा ख्याल है यही समझ आया कि आप कोई उनके कोई बहुत कोई वो नहीं बता रहे कि भाई ये अनटचेबल है, आप ये बताना चाह रहे हैं कि भाई उसका पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है, उसका जो एक हर चीज पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ होती है, वो समझना जरूरी है किसी इंसान को तनकीद का निशाना बनाने से पहले। आई थिंक आप यही कहना चाहते हैं। मुझे यही भाई अनटचेबल सिर्फ आका अलैहिस्सलाम की ज़ात-ए अक़दस है, उनकी फैमिली की ज़ात-ए अक़दस है, चाहे वो उनके अहले बैत हों और या चाहे उनके बड़े हों, उनके फोर फादर्स हों। ये जो चेन ऑफ अंबिया है ये अनटचेबल है, और एंड ऑफ द चेन ऑफ अंबिया अनटचेबल है, द फैमिली ऑफ द प्रॉफिट अहले बैत अलैहिस्सलाम जितने भी हैं ये अनटचेबल है। जो इनको टच करने की जुर्रत भी करता है वो मेरे कागजों में अपने दीन को ही नहीं समझा, अपने दीन को, वो जिस भी मसलक और मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखता है उसको पता ही नहीं है कि उसके बड़े इनके कितने मुतकिद हैं। ये जितने स्कूल्स ऑफ इस्लाम इस्टेब्लिश्ड हैं, जितने भी, चाहे वो शाफी हों, चाहे वो मालिकी हों, चाहे वो हम्बली हों, चाहे वो हनफी हों, चाहे वो इधर के देवबंदी हों, चाहे वो बरेलवी हों, चाहे वो अहले तशय्ई हों, चाहे वो अहले तशय्ई में नौसैरी हों, चाहे वो इस्माइली हों, चाहे वो बोरी हों, चाहे वो खोजे हों, एनी ऑफशूट ऑफ इस्लाम is a product of some school of thought from a founder member of the school of thought. Every founder member of school of thought is a मुतक़िद of अहले बैत अलैहिस्सलाम। कोई हिस्ट्री में है ही नहीं। आप मुझे किसी स्कूल का पूछें, मैं आपको उसकी पूरा शजरा बताऊंगा कि कहां वो अहले बैत के फैज के बाद अपने रस्ते को समझा है, देख पाया है। हिदायत मिलती ही इस घर से है। और इसलिए नहीं कि, और बाय द वे मैं अहले तशय्ई को भी उतना ही दूर देखता हूं उस हिदायत के रोशनी से जितना अहले सुन्नत को देखता हूं। कहीं मेरी गुफ्तगू से ये ना लगे कि मैं कहीं प्रो अहले तशय्ई हूं, मैं उनको ज्यादा कसूरवार ठहराता हूं। वो तो उस घर की निस्बत लेके रास्ते से भटके हुए हैं। तो फ्लैग बेयरर्स थे वो तो। अहले सुन्नत तो चलो अपने लेगेसी को मेंटेन कर रहे हैं कि जी हमने एक पैरेलल ये स्टैंस एस्टैब्लिश ना किया तो असहाबे कराम का जो वर्सा है वो ऑब्सोलीट हो जाएगा। ये अच्छी, उनकी नीयत अच्छी है उनकी कि असहाब के वर्सा भी अलाइव रहना चाहिए, जैसे अहले बैत अलैहिस्सलाम का वर्सा अलाइव रहना चाहिए। लेकिन जिन इन दोनों स्कूल्स के फॉलोअर्स अपने घरों से दोनों दूर हो चुके हैं, और ये होना था। ये आका अलैहिस्सलाम ने अपने जमाने में कह दिया था। सूरह बकरा की आयत नंबर 78 है या 79 है, जिसमें अल्लाह ताला के नबी अल्लाह ताला की आयत को तफसीर की सूरत में बयान करते हैं कि जैसे यहूदो नसारा ने अपनी किताबों के पैरेलल एक रिलीजन एस्टैब्लिश किया था जिसको मतवाजी मजहब कहते हैं, वैसे ही मुझे डर है मेरी उम्मत भी करेगी। आगे चल के हदीस में वो कहते हैं एक नहीं 73 स्कूल एस्टैब्लिश करेगी। जो एक होगा जो उसके साथ अटैच्ड होगा, बाकी सब जहन्नुम में जाएंगे। उन्होंने जमीन में रेत में ऐसे करके एक लाइन खींची और उससे शाखें निकाली। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास उनके नहीं, इब्ने मसूद उनके साथ थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इब्ने मसूद ने कहा अगर इस्लाम ये क्या है? उन्होंने कहा ये दरमियान में जो रास्ता है ये सिराते मुस्तकीम है और मेरा रास्ता है, अल्लाह की किताब का रास्ता है, और ये जो शाखें हैं ये जहन्नुम के रास्ते हैं। उन्होंने कहा तो ये शाखें कहां से हैं? उन्होंने कहा ये वो 73 फिरके हैं जो गलत रास्ते पे होंगे, ये दरमियान वाला है जो ठीक होगा। Now this was foretold by the prophet कि ये होगा, होना है, होता रहेगा, और इसको आप रोक नहीं सकते। आपने सिर्फ अपने आप को उस दरमियान वाले रास्ते पे लाना है जिस रास्ते पे फलाह है, बका है इंसानियत की और इस्लाम की। बिल्कुल सही है। और तो मेरे अंदाजे में, मेरे नजदीक ये दोनों एक जितने गलत हैं, इसलिए कोई ये मतलब ना निकाल ले कहीं कि मैं कोई प्रो शिया गुफ्तगू करता हूं। नहीं, आपने अच्छा किया, क्लियर कर दिया। थोड़ा सा फील ऐसा आ रहा था। वैसे मैं सबको सही समझता हूं और सबको गलत समझता हूं। मतलब ये कि इन सब में ठीक लोग पाए जाते हैं जो ठीक रास्ते पे हैं, और इन सब में गलत लोग पाए जाते हैं जो गलत रास्ते में। किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ कि वो शिया है तो ठीक है या सुन्नी है तो ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने शिया घरों में यजीदी देखे हैं, मैंने सुन्नी घरों में हुसैनी देखे हैं। इसलिए इट डज नॉट मैटर कि वो किस घर के या किस स्कूल के हैं, वो ठीक रास्ते पे है तो वो ठीक है। बड़ा जबरदस्त तरीका है, और यही मैं तरीका है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने चैनल से लोगों को पुश करूँ इस मेंटालिटी को।